Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Okay, so welcome to all of you in the fourth session. So I think most of your friends are busy in Dhanteras and for the preparation of Diwali. So you can also remind them if possible. So today's our speaker is Kisle sir. So sir, you can start. Okay, thank you for giving me this chance. So let us start now. So before that, Sir, can we have? your video is not on. Yes, I have not just on my video because everyone is in incognito mode. So can everyone switch on their cameras? So I will also switch. Okay, I think let me only switch on my. You all are busy. Okay, so let us begin. Can anyone confirm is my screen visible or not? Yes, sir. Okay, thanks. Okay, okay. So
Very good evening, everyone. So I welcome you all to the fourth session of the very wonderful, very great series, Discover Yourself. Okay. So until now, you have learned a very important things from Bhagavad Gita, basically, how this body is just like the shirt from the soul. Hmm? Just like if you hang a shirt in a hanger, it looks like it has two hands and a body. But you know the shirt is not as important as your body. So, right, this is what you have learned till now. Yes or no? Yes, sir. So you also learn, you must have also learned, let me like just give you a fast, quick recap. You must have learned about that you are a driver of the body and your body is like a car. Am I right? Okay. Am I right? You learned this? You got to know this, know about this, that you are the driver of the body and your body is like a car. Yes, sir. Yeah, okay. Thanks for the confirmation. So now we will see like to just drive the car, you are given a manual, right? For every car, when you buy a car or a gadget, you are given a manual. So similarly, now in this session, we'll see the manual of life. Okay. So we'll access the truth beyond defects. Okay. Just like we buy anything from the market, like we buy the pressure cooker or we buy the car, we buy anything, we need a manual. Okay. So, like, suppose you buy a very new, brand new car. So, how will you know that you have to put petrol there or diesel there? So, you will get to know that via the manual, right? आप manual से उसको सीखेंगे कि उसमें पेट्रोल डालना है कि डीजल डालना है. So first of all, let me ask, मैं हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश मिक्स व्हाट लैंग्वेज शुड आई यूज, मैं कौन सा भाषा का उपयोग करूं? प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और हिंदी इंग्लिश मिक्स? यू कैन राइट इन द चैट मिक्स. ओके. ओके. ओके श्योर. मिक्स. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. सो अब हम देखेंगे हमारा जो मैनुअल ऑफ लाइफ है, what is the manual of the life, and now we'll see the indefeatable Vedic truth. जैसा कि आप जाने होंगे, अभी YouTube शॉर्ट्स का जमाना है, इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, तो उसमें आप जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आप जाने होंगे कि हमारे वेदास में या वैदिक लिटरेचर्स में जो चीज है, उसको भले आज तक हम जान नहीं पाए हैं या उसके बारे में हम गहराई से रिसर्च नहीं कर पाए हैं, पर उसको आज तक कोई गलत साबित भी नहीं कर पाया है. तो सिमिलरली आई विल आस्क यू समथिंग. आप कुछ ऐसा चीज बताएं जो कि हमारे वेद में, वैदिक शास्त्रों में मेंशन्ड है, और उसको धीरे धीरे एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, कुछ समय के बाद साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट किए कि यस दिस इज राइट. पर हमारे वैदिक शास्त्र में या वैदिक लिटरेचर्स में हजारों करोड़ों साल पहले से वो चीज लिखी हुई थी. क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? एनीवन? ओके. आई थिंक नो वन. ठीक है. तो चलिए मैं बताता हूँ. हमारे वेद में, हमारे वैदिक शास्त्रों में दो तरह के चीज मेंशन है, एक चर और एक अचर. ठीक है. चर मतलब जो मूविंग लिविंग बीइंग्स है, और अचर मतलब नॉन मूविंग लिविंग बीइंग. ओके. तो नॉन मूविंग लिविंग बीइंग्स मतलब क्या? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? नॉन मूविंग लिविंग बीइंग. चैट बॉक्स इज आल्सो ओपन, लाइक यू कैन. The trees. या ट्रीज, ट्रीज प्लांट्स. ओके. बट 1900s के पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे कि
प्लांट्स ट्रीज क्या है, नॉन लिविंग है, और ह्यूमंस क्या है, लिविंग है। ठीक है, तो उसको कौन प्रूव किया? कैन एनीवन गेस द नेम, लाइक नॉट गेस, लाइक आप सबको पता ही होना चाहिए, बता सकते हैं कौन उसको प्रूव किया कि प्लांट इज लिविंग? एनीवन एनीवन? अरे आप लोग तो, यू ऑल आर फ्रॉम एमबीबीएस डायग्राम राइट? ओके, एनीवन एल्स? इतने देर में तो गूगल में जवाब दे देता। ओके ओके, यस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, he proved it that plants have life। जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में ये हजारों करोड़ों साल से मेंशन है। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही कॉमन। हम जिम क्यों जाते हैं? बॉडी बनाने, बाइसेप्स बनाने, अपने बॉडी को फिट रखने। हाँ, पर हमें बहुत सालों तक योगासन के बारे में पता ही नहीं था। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो दिस इज द इनडिफिटेबल ट्रूथ ऑफ वैदिक ट्रूथ। तो आप और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक समवन लाइक टू कैन वांट टू स्पीक अबाउट सम मोर ट्रूथ जो आप जानते हैं या जो आप शेयर करना चाहते हैं। हम्म, ओके, चलिए मैं बताता हूँ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम, you can imagine like how many years back Srimad Bhagavatam was spoken, Srimad Bhagavatam was compiled, huh? Not spoken, Srimad Bhagavatam was compiled, huh? Srimad Bhagavatam clearly states about how the baby is formed inside the womb of a mother, how man and woman unite, huh? Sperm breaks egg and enters into the embryo. So it is stated in the Srimad Bhagavatam from so many years. Okay. काउ डंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? So there are millions and billions. Scientists never believed that cow dungs have any potency. Cow dung have or had any potency. But now in this time they came to know that yes, cow dung is potent. Okay, so there are millions and billions of examples. We can now see how like the Vedic art, Vedic maths, yoga, organic farming, and other things. These things were mentioned in the Vedas, which the common people, the scientists, they have started accepting as of now. So here are some things which we will see now. Okay. We'll see the story of 6 blind men and one wise man story. We will see 3 ways to gain knowledge. We will see 4 defect leads to imperfect knowledge. We will see scientific research, can it offer complete knowledge? And at the end, we will see Vedas offer perfect and complete knowledge or not. Okay. So I want you all, let us make this session interactive. You ask your question, you put forward your points. Okay. It should not be that I say something and you just simply accept it. Okay. I want you all to interact. Okay. If you are trying to understand this, give it 100%. Let's understand this completely. Okay. Okay. Now, next go. Okay. First thing, 6 blind men and one wise man story. Okay. तो यहाँ पे 6 अंधे लोग खड़े हैं, ठीक है, ब्लाइंड में, और एक क्या है, हाथी है ये। ओके, सो इस पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई कुछ बताएगा? एनीवन? गुड इवनिंग सर। बताइए। सर यहाँ पे 6 ब्लाइंड पर्सन प्रेजेंट हैं जो कि एक एलिफेंट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करके खड़े हुए हैं। हम्म, राइट।
ओके, राइट, ठीक है। तो पहला आदमी क्या छू रहा है उसका, हाथी का, पहला आदमी हाथी का ट्रंक छू रहा है, ठीक है। उसको क्या लग रहा है, उसको क्या फील होगा बताइए। हाँ, स्नेक। पहला आदमी, एनिमल, स्नेक सर। यस, उसको फील होगा कोई एक सांप को छू रहा है। दूसरा आदमी क्या छू रहा है हाथी का, कोई और कुछ बताना चाहेगा। दूसरा आदमी हाथी का पूंछ छू रहा है, तो उसको क्या फील होगा, हाथी का पूंछ कैसा लगता है, रस्सी की तरह ना, राइट। तो उसको लगेगा कि मैं रस्सी छू रहा हूँ, रस्सी पकड़ा हुआ हूँ मजे में। ओके। तीसरा आदमी क्या है, हाथी के ऊपर बैठा है, हाथी का कान छू रहा है, तो उसे क्या लगेगा, या, सर फैन की तरह लगेगा। या उसको फैन की तरह लगेगा। Good। तो उसको लगेगा कि वो पंखा छू रहा है। हम्म। चौथा आदमी क्या छू रहा है, चौथा आदमी हाथी का पेट, शरीर छू रहा है, तो उसको क्या लगेगा। रॉक की तरह लग सकता है। यस, he is touching the rock, he is touching the rock, he is touching the uh, wall, just like wall structure। पांचवा आदमी क्या छू रहा है हाथी का, सर उसके दांत। हाथी का टस्क छू रहा है, तो उसको लगेगा कि वो तीर छू रहा है। छठा, लास्ट पर्सन क्या छू रहा है हाथी का, पैर, तो उसको क्या लगेगा कि वो क्या पकड़ा हुआ है, उसको लगेगा कि वो हाथी का, वो एक पेड़ का ट्रंक पकड़ा हुआ है। ओके, राइट। सो हाउ डू यू थिंक दे कैन गेन कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द एलिफेंट। सो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या ये सब के सब गलत थे, क्या, या फिर ये सब के सब सही थे। आर दे कम्प्लीटली राइट और दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग। कोई बताना चाहेगा, एनीवन। हम्म क्या ये छह इंसान गलत थे या छह इंसान सही थे। ओके, सॉरी, आई एम तो नॉट उनके सीइंग दैट। पर्सपेक्टिव से वो सही है। ओके, सो आपका मतलब ये पार्शियली राइट है ये लोग सब के सब। यस सर। पर इससे क्या वो कभी भी एग्जैक्टली वो चीज क्या है हाथी, उसके बारे में जान पाएंगे। नो सर। सो दे आर कैप्चरिंग वन पार्ट ऑफ द होल स्ट्रक्चर and they are trying to understand the entire structure, so which they are failing to do. तो सिमिलरली व्हेन वी आर स्टडिंग नेचर अराउंड अस, जब हम नेचर को पढ़ते हैं, हमारे आसपास समझने की कोशिश करते हैं, वी आर एबल टू एक्सेस और वी आर एबल टू सी, हम बस क्या एक नजरिए से ही देख पाते हैं, और हम बहुत बार बहुत अलग अलग तरह से उसको देखना मिस कर देते हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर हमें सेशन एंड होते होते मिल जाएगा, और we'll get the complete answer at the towards the end of the session, right? Okay, so let's go next. So now we will see gaining knowledge. Okay, knowledge क्या होता है, क्या आप कुछ बता सकते, कैन एनीवन से व्हाट इज नॉलेज। कैन एनीवन से व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, वाई वी शुड गेन नॉलेज, हाउ वी शुड गेन नॉलेज। हाँ, वाई, वेयर, हाउ, कुछ कुछ बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हम्म किसी की तो भी है। चीज के बारे में स्टडी करना, उसे जानना, उसके मतलब उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करना, उसे एक अल्टीमेट एक वर्ड में हम नॉलेज बोल देते हैं कि हमें इस चीज के बारे में नॉलेज है। हम्म
एग्जैक्टली। हम क्या है, हम सबको नॉलेज चाहिए, वी आर वेरी ईगर टू गेट नॉलेज, इसलिए हम क्या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, यहाँ कहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज चाहिए। देखिए नॉलेज को कैसे कंपेयर, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। नॉलेज को एक्सप्लेन किया गया है, हम एक रूम में है और रूम क्या है, डार्क है, डार्क। अगर आपको डार्क रूम में बंद कर दिया जाए तो आप क्या चीज के लिए, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल वांट टू डू? पहला, आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, सबसे पहला चीज आप क्या करना चाहेंगे? Find the light. Yes, find, you will try to find the light. You try to switch on the light. Huh? So this dark room is ignorance and that light is knowledge. So by getting the knowledge, you want to come out of ignorance. Okay? बिकॉज जब आप डार्क रूम में हैं, आपके पास लाइट आ गया, तो आप हर चीज को देख सकते हैं। फिर आपके अंदर डर नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव भय, यू विल नॉट, आप भय से दूर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी कुछ साल पहले कोविड आया था, कोरोना। तो इनिशियली लोगों को कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता था, कोरोना वायरस क्या होता है, इसका कैसे जन्म हुआ। लोग डर रहे थे, लाइक पीपल वर गिविंग सम ओन मिसकंसेप्ट, मतलब लोग अपने तरफ से अपना अपना बात रख रहे थे कि अच्छा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से हो रहा है। और इस तरह वो डर फैलते जा रहा था, आप लोग को याद होगा, राइट? हम्म। ये डर फैलते जा रहा था, हाँ। एंड at some point the scientists, the doctor, they came forward, they researched on it, they got some knowledge, evidence, and they proved it। तो फिर लोगों में नॉलेज आया, बिलीव आया, वो उस भय से दूर हटे। ठीक है। तो अब आप बताइए कि why we want knowledge, कुछ रीजंस बताइए कि हमें क्यों नॉलेज चाहिए। हम कुछ डिस्कस किए अभी। गो अहेड। To know the meaning of life और the way of life, हम कैसे रह ओके। सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैनी पर्सपेक्टिव, लाइक आप किसी भी चीज की नॉलेज ले रहे हैं तो आपको मतलब ऐसा रहता है ना कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। हमको वो ना जानने की जो इच्छा होती है, दैट्स व्हाई नॉलेज। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एनीवन एल्स? राइट, आप, यू आर राइट। और one point she said, and any some, there are some more, there are many points actually. So yes, one, her point is absolutely right. Anyone else? मीटिंग सर। Yes, please go ahead. हाँ सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज की नॉलेज है तो हम उस चीज पर बिलीव कर सकते हैं, उस बारे में हम फिर आगे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। Okay, लाइक अगर हाँ हम सम, अभी की कंडीशन में बोलें कि अगर मुझे नॉलेज है कि व्हाट इज सोल, व्हाट इज सुप्रीम पावर, तो इन फ्यूचर मैं भी बोल पाऊंगा कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये होती है, क्योंकि मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। वेरी गुड। सो बेसिकली हम नॉलेज से क्या, इग्नोरेंस से दूर हट सकते हैं, राइट? हाँ। तो एक बताई, about Anvi, right? So Anvi said about we want to get knowledge for knowledge, for sheer sake of understanding, we want to get knowledge. And Pranay said like we want to gain knowledge. Basically, he meant to get free from ignorance, right? Okay. And anyone else like other some other points? कोई और कुछ बोलना चाहिए? Okay. ओके, वी वांट नॉलेज, लाइक लेट मी एक्सप्लेन। हम, मैं बताता हूँ एक बार। हम नॉलेज गेन करना चाहेंगे अपना लाइफ आसान बनाने के लिए, इज इट राइट? अपना लाइफ आसान, कंफर्टेबल, आरामदायक बनाने के लिए। यस सर। ये सब। जैसे मान लीजिए एक पंखा है, मैं अभी इधर मेरे ऊपर पंखा है, ठीक है। तो जब मुझे नॉलेज ही नहीं है कि इस पंखे से हम हवा ले सकते हैं, लाइक वी कैन गेट सम कूल एयर आउट ऑफ दिस फैन। हाँ, अगर मेरे अंदर ये नॉलेज ही नहीं है, देन हाउ कैन आई मेक माई लाइफ इजी, हाउ कैन आई गेट rid ऑफ हीट, हाउ कैन आई गेट rid ऑफ स्वेटिंग। सो इफ मेरे अंदर अगर नॉलेज है कि ये पंखा मैं ऑन करूंगा तो ये पंखा चलेगा, फिर इससे हवा आएगा, तो उससे मुझे अच्छा लगेगा, हाँ। तो इससे क्या, मेरा लाइफ आसान हो गया ना। हम्म, और आसान क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सफरिंग से अपना दूर कर रहे हैं। तो वन मोर थिंग इज, वी वांट टू गेट नॉलेज टू अवॉइड सफरिंग्स। ऐसे मान लीजिए आप भोपाल विदिशा रहते हैं, तो विदिशा से आपको न्यू दिल्ली जाने को बोला जाए, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि अच्छा यहाँ से ट्रेन जाती है या फिर यहाँ से बस जाती है या आप कार से जा सकते हैं,
So you will go by walking and then you will get a lot of suffering. So if you have the knowledge that, okay, if I can catch this train, then I can go from here to Delhi and so on. So these are the four, these are some four, like what you all said, purpose of getting knowledge. Okay. So now we'll see what are the ways of getting knowledge. Why, what, why, and how. Okay. So now we'll see what are the ways of getting knowledge. Okay. Can anyone say what are the ways? सर टू मतलब हम ऐसे जो बुक्स होती हैं जो ऑलरेडी लिखी गई हैं जिन लोगों को नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उनके द्वारा हम सुन सकते हैं, उन बुक्स को रीड कर सकते हैं। जो लोग नॉलेज ऑलरेडी नॉलेज होल्डर है हम उनकी गाइडेंस में रह सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज लाइक। Okay. Anyone else? और भी yes, right. और तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी नॉलेज गेन की जा सकती and else. Okay. Anyone else? Okay. So आप दोनों ने सही बताया एकदम। So these are basically the three categories of gaining knowledge: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, and शब्द प्रमाण। Okay, जैसा आप बताएं कि आप शब्द प्रमाण क्या में you said, then Ujjwal said about experiments, right? तो ये किस में आ गया बताइए? तो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर अनुमान प्रमाण में भी आ सकता है ना एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन, थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मिक्सर है दोनों का। ओके। ओके, सो पहला हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण और डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब एक, अच्छा, कैन एनीवन से व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण इन लाइक क्विक? व्हाट इज सेंस परसेप्शन? क्या समझ में आता है सेंस? सेंस मतलब हमारे इंद्रिया, परसेप्शन मतलब हमें इंद्रिया से क्या समझ में आता है। फास्ट फास्ट। कैन प्रत्यक्ष प्रमाण गिव अस फुल नॉलेज? क्या हम जो देख रहे हैं या जो अपने सेंसेस मतलब इंद्रियों से जिस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, सॉरी मेरा हिंदी लाइक इज नॉट सो गुड, जो हम अपना इंद्रियों के से जो चीज ग्रहण कर रहे हैं या जो चीज समझ रहे हैं, वो क्या हमें पूरा कंप्लीट नॉलेज देता है? कैन एनीवन से? नो सर। इज सीइंग इक्वल्स टू बिलीविंग? नॉट ट्रूली सर। It can be, right? It is like I see there is water, so there is water, right? Seeing can be equal to believing. सर लाइक अगर मुझे पानी दिख रहा है तो वो अगर हम ऐसे मिराज भी तो हो सकता है ना, मतलब कंफर्म नहीं है ना कि देखा वो सही है। Okay, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी सी। अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल आ गया रेलवे पटरी का। ये क्या, रेलवे पटरी हम खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि रेलवे पटरी आगे में जाके मिल रहा है, जो कि सही है, वो मिल भी जाता है, राइट? मिलता है ना आगे जाके। नो सर, दे आर पैरेलल। पैरेलल? ओके। Oh, it means my eyes are getting illusioned. So these are not actually, then I think that is a problem with my eyes. Anyways, then if we go next, then we can see एक बच्चा है, वो एक कन्वेक्स मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर में अपने आप अपना रिफ्लेक्शन देखता है। So he sees that he is fat and he sees that he is tall in one image. So what will he think of himself? Is he fat or is he tall? Right? तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं, राइट, कि सीइंग बिलीविंग के इक्वल नहीं है। वी डू नॉट ऑलवेज बिलीव और वी डू नॉट बिलीव व्हाट वी सी, वी शुड नॉट, वी डू नॉट, राइट? ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, एक पेंसिल को डुबाया गया है, पेंसिल लग रहा है टूट गया है, मतलब पानी में जाने का, पेंसिल इज ब्रोकन, राइट? सो दिस इज
not seeing equals to believe. So someone tells us about, no, this is refraction. So refraction में bend हो जाता है and so on. Then we believe, okay, yes, we get to know from some other sources by some experimental fact and all this thing. Okay, then now she, as she told about Mirage. So is seeing equals to believing? We cannot acquire complete knowledge using our material senses like eyes, ear, etc. अरे, अगर हम हमारा सेंस ऑर्गन्स क्या है, यही तो है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, तो हम आईज अपने पांच इंद्रियों से कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते, कंप्लीट ज्ञान नहीं ले सकते, कंप्लीट किसी चीज को नहीं समझ सकते। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? कैन एनीवन से? हम अपने इंद्रियों से फाइव सेंस ऑर्गन्स से कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ज्ञान नहीं ले सकते। कुछ क्योंकि समय सर पहले, ह्यूमन सेंसेस की कोई ना कोई बॉन्डेजेस है, ओके, लिमिटेशंस। आप सबको याद है, अभी हम पहले नॉलेज पढ़े कि व्हाट नॉलेज क्या होता है, नॉलेज कैसे होता है। हमारे बॉडी में तो बस सेंसेस ही है ना, और यहाँ पे तो बता रहे हैं कि हम अपने सेंसेस से कुछ गेन ही नहीं कर सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते। क्यों? लिमिटे उज्जवल सेड लिमिटेशन है। एनी अदर आंसर? मे बी बिकॉज हम अपने सेंसेस अपने मतलब सेंसेस हम अपना पर्सपेक्टिव बना रहे हैं और जरूरी नहीं है वो पर्सपेक्टिव सही हो। जैसे अभी आपने वो एलिफेंट वाला बोला था तो उसमें वो पर्सपेक्टिव बना रहे थे अलग अलग पार्ट से, पर दे वर नॉट राइट। तो सेंसेस से हम अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं पर वो जरूरी नहीं है कि वो ये, सही हो। ओके ओके, राइट। बट अगर मान लीजिए कोई और आदमी, हम अपना, हमारा पर्सपेक्टिव राइट नहीं, तो अगर हम किसी और आदमी को भी लुक हिम एज अ गुड पर्सन और अ बेटर पर्सन, और वो अगर कोई अच्छा पर्सपेक्टिव बना रहा है, तो क्या वो तो सही हो सकता है ना? सर हाँ, मतलब, हम मान लेते हैं कि अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बोला है तो वो सही ही होगा। जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिया तो वो सही ही है। मतलब वो प्रूव भी ना दे ऐसा, तो इट्स लाइक कि हम मान लेते हैं पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो भी सही ही हो। ओके ओके, सो here is the answer because we have four defects. What are those four defects? आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई कुछ बताएगा? एनीवन? क्या है वो फोर डिफेक्ट्स? राइट, यू बोथ कर राइट। और कुछ फोर डिफेक्ट्स यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे अंदर चार डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट आता है हमारा इनएबिलिटी, जो कि हम देखें। व्हाट इज आवर इनएबिलिटी? आवर इम्परफेक्शन से, हमारी इम्परफेक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? अधूरी है, नहीं, अ, असक्षम, असक्षम इंद्रिया नहीं, अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण, अपूर्ण इंद्रिया, राइट। हमारी अपूर्ण इंद्रिया, हमारी इंद्रिया परफेक्ट नहीं है। हम्म, ओके, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम देखे, ठीक है। तो अगर हमारी इंद्रिया परफेक्ट नहीं है तो इससे क्या हो सकता है, आप कुछ बता पाएंगे? हमारी आंख परफेक्ट नहीं है, टच नोज परफेक्ट नहीं है, तो इससे हम क्या होंगे? कुछ सर स्टेप्स सबका होते हैं। अपना अपना परस्पेक्शन बन सकता है। जैसे मुझे अगर मेरी आई में डिफेक्ट है तो मैं कुछ और देखूंगा, या मान लो कलर या ब्लाइंडनेस है मुझे तो मैं कुछ और देखूंगा, आप कुछ और देखेंगे। तो या दो अलग अलग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है। यस यस, राइट, करेक्ट। और कुछ एक, ये बहुत ही मतलब, हाँ, इट इज राइट, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रॉन्ग, बट इसको एक टर्म में क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी हम चार चीज देखे ना, एक वो मिरर वाला, डिफ्रैक्शन, मिराज, और वो क्या बोलते हैं सबसे पहले जो था, जो भी, तो उसको क्या था, हम इन अपने आईज के कारण क्या हुए? वन वर्ड, दैट वर्ड। हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है, उससे हम क्या हो रहे हैं? ओके, उसको, ठीक है, क्या हमारे, हो रहा हाँ, क्या? भ्रम। है? हम illusion। यस, राइट, वी आर गेटिंग इल्यूजन। हमारा सेंसेस, हम, याद होगा बचपन में हम कॉपीज लाते थे ना वो नोट्स बनाने के लिए, तो उसके पीछे में इल्यूजन रहता था, मिराज विराज का लिखा रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण हम क्या हो रहे हैं? इल्यूजन हो रहे हैं, राइट।
ठीक है, हम इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारा, उससे हम क्या इल्यूजन हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इल्यूजन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, चलिए हम आंख से देखें कि रेलवे का पटरी आगे जाके मिल गया। ठीक है, तो ये क्या, हम इल्यूजन हो गए कि रेलवे का पटरी आगे जाके मिल रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? इससे हम मिस्टेक करने की टेंडेंसीज हमारे अंदर आएगी। हाँ, हम गलतियां करेंगे, एरर्स। राइट, हम जाके सबको बताएंगे, हम सोच लेंगे कि अच्छा रेलवे की पट्टी आगे जाके मिल रही है, ये रास्ते पे भरी दोपहर में इतने गर्मी में पानी पानी है, देयर इज अ रिवर फ्लोइंग, so this is the tendency we are committing, that we get inside us the tendency to commit mistake, right? और उसके बाद क्या आती है, हम हमारे imperfect senses हैं, हम illusion हो गए, हम गलतियां किए, गलती किए, उसके बाद हम क्या, हमारे अंदर आए कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम चीट करेंगे लोगों को। राइट, सो दीज आर द 4 डिफेक्ट, हम लोगों को चीट करेंगे उसके बाद। ये है 4 डिफेक्ट, इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, टू बी इल्यूजन, हम भ्रमित हो जाएंगे इससे, फिर हम गलतियां करेंगे इससे, और हम फिर दूसरे लोगों को इस गलतियों से और भी फंसाएंगे, हम चीट करेंगे लोगों को। ये है हम हर एक लिविंग एंटिटीज के अंदर ये 4 डिफेक्ट्स या 4 कमियां होती हैं। ओके, सो विल सी अबाउट दिस थिंग्स। ओके, अच्छा, हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस का आप एग्जांपल्स दीजिए कुछ। यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, हमारा आंख है, उसका रेंज होता है, हम बस विजिबल लाइट्स को देख सकते हैं। विजिबल लाइट्स का क्या होता है, 400 to 700 मिली माइक्रोन। हमारी कान हर साउंड फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन सकती, बस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं हम। हाँ, राइट, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? या अक्षत इज राइट। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ओके, व्हाट दिस जेंटलमैन इज सेइंग, कैन एनीवन रीड दिस आउट? मतलब कोई पढ़ सकता है इसको? If senses have limitation, I can use instrument to get more knowledge of the world. ओके, तो क्या अब, ओके, समवन एल्स से ये सही है कि गलत है? सर गलत तो ये भी हो सकता है, लाइक इंस्ट्रूमेंट भी तो ह्यूमन ही डिजाइन कर रहा है। ओके, राइट, कूल। ठीक है, आप में से कोई पढ़िए ये। कोई पढ़ेगा ये? प्लीज रीड समवन। Nobel Prize winning physicist Eugene Wigner points out, even if we photograph stars, eventually we have to take in by our sense what the photo shows. Furthermore, without our senses, we cannot handle a camera. If we amplified, refined by the instrument, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. हम्म हम्म हम अगर फोटो ले भी लेते हैं तो हम उसको कैसे परसीव करेंगे, अपने सेंसेस से ही। हाँ, राइट, सो आई थिंक इट इज अंडर, आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्या है, टू बी एल्यूजन। तो उस पहला क्या था, इम्परफेक्ट सेंसेस। परफेक्ट उससे क्या सेंसेस। होता है, हाँ, उससे क्या होता है, हम इल्यूजन भ्रम में रह सकते हैं। तो कुछ आप बता सकते हैं इल्यूजन, लाइक हाउ वी गेट इल्यूजन बाय आवर डिफरेंट सेंसेस, सेंसेस का एग्जांपल देख के बताइए। हमारा ये सेंसेस ऐसे इल्यूजन हो सकता है, टंग ऐसे इल्यूजन हो सकता है, ईयर ऐसे इल्यूजन हो सकता है, मतलब भ्रम में जा सकता है। हाँ, हम अपने जीभ को ऐसे भ्रमित कर सकते हैं, आंखों को ऐसे भ्रमित कर सकते हैं। बताना चाहेगा कोई? देखिए, टू बी इल्यूजन, टंग, हम आप गुलाब जामुन खाइए, उसके बाद संतरा खाइए,
संतरा क्या लगेगा? संतरा खट्टा लगेगा, राइट? उसके बाद आप नींबू खाइए, फिर वापस संतरा खाइए, संतरा क्या मीठा लगेगा, राइट? आप कभी कुछ मीठा खा के फिर मिठाई खाएगा तो आपको दूसरे वाले मिठाई का मिठास फील ही नहीं होगा, राइट? ये क्या है, हमारा टंग को हम इल्यूजनाइज करते रहे, हम भ्रमित करते रहे। ठीक उसी प्रकार अगर हम गर्म हाथ से ठंडा पानी छुएंगे तो ठंडा लगेगा, नॉर्मल पानी छुएंगे अगर वही ठंडे हाथ से नॉर्मल पानी छुएंगे तो गर्म लगेगा। So this is how we are getting भ्रम में हम जी रहे हैं। ओके, अब मैं फटाफट कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, या तो आपको चैट में लिखना है या फिर आपको माइक अनम्यूट करके बोलना है कि आप क्या देख पा रहे हैं उस पिक्चर से। ओके, डू नॉट टेक मच टाइम, इंस्टेंटली राइट व्हाट आर यू एबल टू सी। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप जो भी उस पिक्चर में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको जल्दी से या तो बोल देना है या फिर उसको लिख देना है, राइट? 1 2 3 गो। बताइए, लिखिए, क्या देख पा रहे हैं इस पिक्चर में? वुमेन, राइट? एंड लीव्स, एक शॉल या चिड़िया। ब्लैंकेट है। ओके, इस पिक्चर में हम अलग अलग चीज देख पा रहे हैं, राइट? ये देखिए, ये एक बूढ़ी औरत भी लग रही है, देखिए ये उसकी आंख, ये उसके ओंठ, और ये उसके नाक, ठीक है? तो इट इज लुकिंग लाइक अ ओल्ड लेडी जो कि एक शॉल ओढ़ी हुई है। और ये एक यंग लड़की भी लग रही है, देखिए उस यंग लड़की का चिन, एंड दिस इज हर नोज एंड दिस इज हर आईलिड, राइट? सो एंड दिस इज हर ईयर, राइट? सो सेम पिक्चर से हम अलग अलग चीजें देख पा रहे हैं। समर सिंह शॉल, समर सिंह यंग लेडी, वुमेन, चिड़िया, राइट? एग्जैक्टली, वी आर एबल टू सी मैनी थिंग, हम अलग अलग चीज देख पा रहे हैं इस सेम पिक्चर से। इसमें बताइए क्या है? इस पिक्चर में हम ट्रायंगल। हम्म इस पिक्चर में ट्रायंगल है, या फिर वो तीन पैकमैन वाले बॉल्स हैं। ओके, इस पिक्चर में भी दो तीन मल्टीपल सिंगर चीजें है हैं। सर, टू दो ओल्ड तीन पर्सन हैं सिंगर है। साथ में, सिंगर, एक म्यूजिशियन। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, यू आर, अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर देखिए, ये हिल रहा है, ये अच्छा पहले पता है ये पिक्चर है कि वीडियो है? पिक्चर है सर। तो आप इसको देखिए, लग रहा है कि हिल रहा है ऐसे ऐसे। यस सर, ये हिल तो रहा है। इल्यूजन है सर, इल्यूजन वाली पिक्चर है। हम्म, ये इसका बताइए, इस पे आप किसी एक पे फोकस करेंगे तो लगेगा दूसरा हिल रहा है, दूसरे पे करेंगे लगेगा तीसरा हिल रहा है ना? यस सर। हम्म, और इसमें आप बीच में देखिए, और अपना चेहरा मतलब अपने माथे को आगे पीछे ले जाइए, आपको लगेगा दोनों जो सर्कल है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? यस सर, यस मूव सर। कर रहे हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इल्यूजन सर। हमारे सारे इंद्रिया को भ्रमित किया जा सकता है, या भ्रम में हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या आता है, इससे हमारा तीसरा डिफेक्ट आता है। तीसरा डिफेक्ट क्या था, बताइए कोई गलत बताएगा? कम्युनिकेट, मतलब गलत चीजें कमिट करना, बताना। जो दिख रहा है वही बता देते हैं हम, तो वो एक मिस्टेक ही हुई। हम्म, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले जो ब्रेन था उसको एक ऑर्गन माना जाता था जो कि ब्लड को कूल करने का जिसका काम बताया गया था, राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यस सर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम यूजलेस ग्लैंड बताया गया था, जबकि ये एक मास्टर ग्लैंड है, इट इज द मोस्ट यूजफुल ग्लैंड इन। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें तो हबल कांस्टेंट था, वो 3 बार उसको चेंज किया गया, 3 बार। वो कौन, वो काय का मतलब वो कैसा कांस्टेंट, वो वेरिएबल हो गया ना।
सो दिस इज, जबकि प्लैनेट्स का पोजीशन नहीं बदला, हबल कांस्टेंट का चेंज हुआ, तो क्या प्लैनेट्स का पोजीशन बदला क्या? यस और नो? प्लैनेट का पोजीशन बदला, अर्थ का पोजीशन बदला, मार्स का पोजीशन बदला क्या? नहीं बदला, कभी नहीं बदला, दे ऑल रिमेन सेम, but this Hubble constant only change this many times. So this is our tendency. We are committing mistakes. We are committing mistakes. Okay. So next comes the cheating propensity. So when people just want some result, they can do fraud. अगर हमको बस कुछ रिजल्ट चाहिए तो हम फ्रॉड करते हैं. आपको याद होगा हम क्लास 11 12 10 9 10 11 12 में हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स होता था. तो याद है कि वो एक लीनियर लाइन बनाना पड़ता था, कुछ डॉट्स, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से कुछ हम डॉट्स प्लॉट करते थे और फिर उसको एक लीनियर लाइन खींचना होता था. डू यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ. तो उसमें कभी कभी होता था ना कि वो लीनियर लाइन नहीं आया है, तो हम, मोस्ट ऑफ द टाइम सर, तो हम हाँ जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज से। हाँ, उसको अप्रोक्सीमेट कहीं कहीं ला के कैसे हो गया, बस हमको सीधा लाइन चाहिए था, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम मेन एग्जाम में अपना हमारा लाइन एकदम टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हाइपरबोला पैराबोला बन गया, राइट? सो दिस इज द चीटिंग, दिस इज लाइक वेयर वी आर, मतलब ओके, पर फ्रॉड ही तो है ये. एम आई राइट? यस सर। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस इसमें? सर सेम प्रैक्टिकल फिजिक्स में जो प्रिज्म का होता था उसमें भी नहीं आता था बहुत बार डिवीएशन, हाँ, तो यस एक एग्जैक्टली. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। बिकॉज दिस इज लाइक आ चीटिंग प्रोपेंसिटी हम सब में है. ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे नहीं नहीं, ये एक है लड़का, उसका नहीं आएगा तो हाइपरबोला बना के आ जाएगा, पैराबोला बना के आ जाएगा, बट ही विल नॉट चीट. कोई था क्या वैसा आपकी क्लास में? नहीं, बिकॉज दिस इज द चीटिंग प्रोपेंसिटी एवरीवन इज हैविंग, आई मीन. तो ये है चीटिंग इन साइंस. इसमें क्या करते हैं हम चीट करते हैं एक दूसरे को. एप्स आर एप्स, ह्यूमन आर ह्यूमन, बट इसको आर्टिफिशियली प्रूव किया गया कि ह्यूमन एप से आए हैं. क्यों? अपना एक थ्योरी या फिर जो भी है उसको प्रूव करने के लिए. तो एक बुक है ये, द पिल्टडाउन मैन हॉक्स, केस क्लोज. तो इफ यू रीड दिस यू विल गेट टू नो मोर अबाउट. ओके. Connecting link made up, fraud revealed, human skull and film jaw. So there are many things, like if you come to know, if you read you will come to know. Okay. आप पढ़ेंगे तो आप और जानेंगे. Hawks prove a bird's missing link. Okay. So if you see this image, right, so you can, there like इसमें birds, डायनास क्या कुछ बताया गया था. Actually there was a, if you read this book, the Piltdown Man Hawks, so this man, this hawks, he proved that human came from ape and all this thing. So what was proved? That he actually, जो ape है, ape का upper part और man का lower part मिला के artificially prove किया गया था. Cheating in science. Filed human jaw and ape skull joined trying to prove evolution of ape man. तो ये एप का पार्ट और मैन का पार्ट को मिक्स करके ऐसा बताने का कोशिश किया गया कि कैसे एप ह्यूमन एप से इवॉल्व हुआ है, राइट? ओके, लेट अस वॉच दिस वीडियो. Evolutionists go so far in this subject that they can even invent. Sound is audible? यस सर। Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name.
as Parapithecus Harold or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution, failed one by one. Neanderthal Man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. तो ऐसा बहुत सारा थ्योरी है जहाँ पे हम जान सकते हैं कि कैसे हम साइंस वी हैव बीन चीटेड, लाइक वी आर गेटिंग चीटेड एंड वी आर चीटिंग एक्चुअली. ओके, सो यू कैन गो एंड रिसर्च मोर एंड आप और जान सकते हैं इसके बारे में. ओके, नेक्स्ट. Now let us come to the second way of gaining knowledge. Sir, Anum. Hmm. Saying sir, may I ask a question? We can ask at the end. Question on the last में करें. Okay, sir. Okay. Okay, so let us come to the second way of gaining knowledge. क्या है second way? अनुमान प्रमाण. Theory based on observation. Guess what? अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं क्या अनुमान प्रमाण का क्या होता है या कुछ इन शॉर्ट? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था? ठीक, जहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं किया वहां पे हम क्या करेंगे? गेस वर्क करेंगे, अनुमान प्रमाण लगाएंगे. एग्जाम्पल, एक रूम है, आप रूम के बाहर खड़े हैं, उस रूम के अंदर से चीखने चिल्लाने का आवाज आ रहा है, तो हम बहुत सारा अनुमान लगा सकते हैं, राइट? कि इस रूम में हो सके तो आ, आ, इंसान लड़ रहे हैं, हो सके तो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, हो सके तो कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं, हाँ राइट, हो सके तो कुछ भी, राइट, अनुमान कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, राइट. पर जब हम दरवाजा खोलते हैं तो मालूम चलता है कि नहीं नहीं बस टीवी चल रहा है, राइट. दिस इज अनुमान प्रमाण. गेसिंग फ्रॉम आउटसाइड व्हाट ट्रूथ कैन बी. तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. डाल्टन क्या बताते हैं? कि एटम को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट. और रदरफोर्ड क्या बताते हैं? कि एटम कैन बी स्प्लिटेड, राइट. हाँ, रदरफोर्ड बताते हैं कि एटम कैन बी स्प्लिट इनटू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऐसे. या फिर बोर आते हैं, वो अलग ही एक थ्योरी देते, राइट. सो हम क्या लोग, पीपल साइंटिस्ट आर कमिंग अहेड विद बेटर एंड बेटर इम्परफेक्ट ट्रूथ. तो यहाँ मैं इम्परफेक्ट ट्रूथ क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड आया, बोला कि एटम को स्प्लिट किया जा सकता है. डाल्टन बोला कि एटम को स्प्लिट नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो डाल्टन का जो ट्रूथ है वो इम्परफेक्ट हुआ ना, क्योंकि एटम को स्प्लिट नहीं किया जा, मतलब एटम कांट बी स्प्लिटेड, दैट ट्रूथ इज इम्परफेक्ट, राइट. बिकॉज रदरफोर्ड प्रूव्ड इट रॉन्ग. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो फेल क्यों हो रहा है? हम्म, हम पढ़े ना अभी, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों फेल हो रहा है? सर क्योंकि एनीवन? हमारे सेंसेस में डिफेक्ट है. यस राइट, हमारे Illusion सेंसर में और डिफेक्ट, आवर सेंसर्स आर डिफेक्टिव. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अनुमान प्रमाण लगा रहे हैं. पर क्या हमारा गेसवर्क भी फेल हो रहा है? जैसे हम रदरफोर्ड, इसका एग्जांपल्स देखें अभी. हम्म, ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ थ्योरी ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन. ओके, सो अगर आप ये डार्विन और वेलेस का वो पढ़ेंगे लेटर्स, तो यू विल गेट टू नो वन वेरी मीन्स, ही रोट मीन्स वॉल्स उनको वो किए थे. उसके बाद चार्ल्स डार्विन पर लेटर लिखते हैं, उसमें क्या लिखे हैं? कैन एनीवन रीड दिस आउट प्लीज? शायद बजने वाले हैं. ओके, मैं पढ़ता हूँ. I am a firm believer that without speculation, there is no good and original observation. After 5 years' work, I allowed myself to speculate
on the subject and drew up some short notes. These are enlarged in 1844 into sketch of conclusion which seemed to me probable. Okay. तो इसमें से आप क्या समझ सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? कैन एनीवन से एनीथिंग? कुछ बताएंगे कोई? अच्छा, आप इसके बाद जाके इफ यू हैव सम प्रॉब्लम यू कैन रीड अबाउट दिस वैलेस पाल्स एंड डार्विन्स लाइक लेटर एंड ऑल. दोनों में बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. ओके, सो लेट मी पॉइंट दिस आउट. यहाँ पे क्या वर्ड्स का यूज किए हैं? ये स्पेकुलेशन, नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. After 5 years, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short note. These are enlarged in 1841 sketch of conclusion which seemed to me probable. Okay. So ये सब क्या चीज का है? Can anyone, आप में से बताइए कि what is this? Can anyone say? कोई बताएगा? So here Darwin is like simply giving some अनुमान. डार्विन अपने गेस वर्क से बता रहे हैं. नेक्स्ट. ओके, ये हटता कैसे? दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ टॉक. इसमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग क्या एप्स से इवॉल्व हुए, राइट? हाँ, एक थ्योरी बताता है ना, ह्यूमन बीइंग्स एंड एप्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो. पर फिर धीरे 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 वो एप्स ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए. पर नहीं, साथ ही साथ एक और स्टडी है, वो क्या बताती है? वो बताते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते थे. देयर आर सम conflicting studies. Man came from monkey. Okay, there are some record which says man came from monkey. There are some record which says no, millions of year ago man also stayed. हाँ, monkey stayed, बंदर बंदर ही रहा, पर इंसान भी इंसान रहा. कि अगर इंसान बंदर से आया है तो अभी भी बंदर क्यों है? वो बंदर इंसान क्यों नहीं बने? ओके, देयर इज सम स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स गोइंग ऑन हियर आल्सो, दैट फील्ड आल्सो. अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा. चार्ल्स डार्विन का, ये बियर और वेल का. ठीक है, ओके. तो चार्ल्स डार्विन क्या बताते हैं? वो बता रहे हैं कि एक बियर था, ये भालू. तो वो क्या, उसको मक्खी खाना था, फ्लाइज खाना था. यू कैन रीड दिस आउट इफ यू वांट. आपको पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं. वो फ्लाई खाना था, तो ऐसे ऐसे करके वो हाँ 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 करके ही इज, गिव मी 1 minute. ओके, तो चार्ल्स डार्विन. ओके, तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे क्या बताते हैं? चार्ल्स डार्विन यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे एक बियर था, वो तैरते 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 मक्खी खाने के फिराक में, मतलब क्या बोलते हैं, ही वांटेड टू ईट मॉस्किटो. सो ही केम बिकेम लाइक दिस एंड ही कन्वर्टेड इनटू अ वेल. और फिर वो एक ओशन में घुसा और वो फिर धीरे धीरे वेल बन गया. सो इज इट राइट? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? गलत है सर। हम्म वो एक बियर एक वेल कैसे बन सकता है? हाँ, आप जानते हैं, यू आर फ्रॉम मेडिकल, आप अभी बायो पढ़ के आए हैं, तो आप जानते होंगे कि वेल का पूरा ही अंदर का सिस्टम अलग है. वेल हैज गिल्स,
bears have other lungs, okay, है ना? यस सर। So how can a bear get transformed into a whale? It cannot. Okay. उसके बाद डार्विन क्या बता रहे हैं? उसके बाद डार्विन बता रहे हैं कि दो तरह के जिराफ थे पहले, लंबे नेक के और छोटे नेक के, राइट? तो उसके बाद क्या हुए, लंबे नेक के जितने भी जिराफ थे वो लोग बच गए, और छोटे नेक के जितने भी जिराफ थे वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्यों? क्योंकि दे वर नॉट टॉल इनफ टू ईट एनीथिंग फ्रॉम द ट्री, राइट? दे आर नॉट टॉल इनफ टू ईट एनीथिंग फ्रॉम द ट्री, सो दे डाइड। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर वो उतने लंबे नहीं थे तो पानी तो नीचे झुक के पीते थे ना, तो नीचे के ग्रास वगैरह नहीं था? सर इसमें मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन थी कि ये इवॉल्व मतलब सारे पहले छोटे ही थे और वो घास ही खाते थे नीचे की, बट एक टाइम पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि नीचे की घास खत्म हो गई। दैट्स व्हाई उनकी नेक में इवोल्यूशन आया और इसलिए वो लंबे हुए। हालांकि ये थ्योरी उसी टाइम मतलब डिस्प्रूव भी लिख दिया था कि ये गलत है, बट स्टिल बोला ये गया था कि नीचे की घास खत्म हो गई थी इसलिए वो हम्म। इवॉल्व हुए और उन्होंने अपनी गर्दन को मतलब नेक को लंबा करा। तो फिर उस समय, हाँ यस आई नो, हाँ मैं भी ये पढ़ा हूँ, पर क्या उस समय फिर उसमें उस समय क्या और भी बाकी डियर्स और भी जो गाय ये सब नहीं बचे क्या? दे और सर्वाइव्ड एट दैट टाइम, दे डिड नॉट अडेप्ट टू अ न्यू बॉडी, राइट? यस सर। So this is also a case of अनुमान प्रमाण इसमें, and आजकल actually today the modern science is also rejecting all these things. Okay. So here are the loopholes. If giraffe had to stretch the neck, they did not drink water. Did they not drink water? हाँ वो पीते थे। हाँ फिर दूसरे जानवरों का क्या हुआ? उनको भी मर जाना चाहिए था, नहीं वो नहीं मरे। अगर इंसान बंदरों से आगे, मतलब बंदर से इंसान बने हैं, तो अभी भी बंदर क्यों जिंदा है? हम्म? तो ऐसा क्या था यहाँ पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताऊंगा कि डार्विन एक अपना ही अलग ही थ्योरी दिए। अब इसको मैं बहुत ही इजीली आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए डार्विन क्या बता रहे हैं, डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार है, जो कि गलत नहीं, मतलब जो कि इस प्रकार है। आप साइकिल चला रहे हो, ओके, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद आप साइकिल चलाए चलाए चलाए, वो साइकिल अचानक से बाइक बन गया, और वो बाइक चलाए आप चलाए चलाए वो बाइक अचानक से कार बन गया, और फिर आप कार को जैसी स्पीड में लिए वो कार अचानक से एरोप्लेन बन गई। तो ये है डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन प्लेन एंड सिंपल एंड इजी वर्ड्स। अब हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जो हम वेदास है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप साइकिल चलाए, आपके पास पैसा आया कुछ, और फॉर सम व्हाटएवर रीजन यू गेट आउट ऑफ द साइकिल, यू यू बाई अ न्यू बाइक, यू गेट इन द बाइक एंड यू ड्राइव अ बाइक। फिर आपका बाइक से मन भरा, आप वो बाइक से उतरे या बाइक को छोड़े, बाइक को रिजेक्ट किए, आप कार खरीदे, कार को चलाएं। फिर आपका कार से मन भरा, कार को छोड़े, और आप फिर प्लेन पकड़े, प्लेन को चलाएं। हम्म? तो ये है हमारे वेदास का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन गलत नहीं है, इवोल्यूशन सही है, इवोल्यूशन इज राइट, बट एक्चुअली व्हाट इज इवॉल्विंग? क्या बता सकते हैं क्या इवॉल्व कर रहा है इसमें? एनीवन? प्रणय, जिगीषा, गार्गी, कैन एनीवन से व्हाट इज इवॉल्विंग एक्चुअली? मैं अभी दो एग्जांपल दिया ना, वो अचानक से साइकिल प्लेन बन गया, और साइकिल को हम छोड़े, ये किए, इसमें गए, फिर वो प्लेन में हम बैठे। तो इसमें क्या इवॉल्व कर रहा है? इवॉल्व सर तो कर रहे हैं बेसिकली हम। देखा जाए तो हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारी वेल्थ बढ़ी है, दैट्स व्हाई हम अपग्रेड आगे बढ़ पाए उस चीज में, अगर इस वे में देखे कार से बाइक से कार पे गए। बट बेसिकली हमारा एनवायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस और नीड्स चेंज होती गई यस। तो सो हम इवॉल्व होते गए। वो तो उससे क्या हमारा, ठीक है, उस कारण से यू सेड द रीजन व्हाई वी इवॉल्व्ड, तो बट व्हाट इवॉल्व्ड? आवर सोल इवॉल्व्ड, राइट? नो सर, सोल कैसे इवॉल्व हो सकती है? लाइक लास्ट सेशन में बोला था कि
सोल जैसी थी वैसी ही अनादर बॉडी में ट्रांसफर, लाइक हम हम्म अभी हमारी बॉडी में है, हमारा जो कर्म जो लॉ है वो पूरा, जैसे ही हमारे कर्म पूरे होंगे हमारी बॉडी को लीव कर कर वो एक अनादर बॉडी में सो चली आपकी जाएगी। कर्मा, आप यू सेड अबाउट हाउ इवॉल्विंग कर्मा, हमारा स्टैंडर्ड चेंज हुआ तो हम बाइक से, दैट इज कर्मा, राइट? एंड यस योर सर। सोल इज इवॉल्विंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट? आपका सोल, यू आपको बताया गया था ना कि आप आपको मालूम है आप ड्राइवर हैं, यू आर द ड्राइवर एंड दिस बॉडी इज द कार। आपका सोल, यू गेट सम गुड कर्मा, okay, then you move out of this body and you get into another body, right? यस सर। So this soul is actually evolving from one body to another. It is not that your body is getting changed. Hmm? Bodies are not transforming, your soul is transforming. Your soul is getting another body, and you said the reason why it is, okay? And what is happening? The soul is changing. Means the soul is not changing, the soul is evolving from one body to another. The soul remains the same. यस सर। Okay. And let us quickly go through the other slides. So, what is the problem with making mistake in research? Research में क्या दिक्कत है? रिसर्च में क्या है? So what's after all they know something. They will research more and improve in the time to come. In meantime, they have left us with so nice electronic gadget and other luxuries to enjoy. Why to criticize their research? हाँ, तो रिसर्च में क्या है, हमें अभी वहां पे छोड़ दिया गया है, वो आगे इवॉल्व करेगी, राइट? जैसे अभी आप में से कोई हमारे साथ, मतलब आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, मे बी दिस इज अ ईयरबड्स, राइट? तो इसको यहाँ पे अभी ईयरफोन से ईयरबड्स लाके छोड़ दिया गया है, ओके? तो ये लग्जरी है हमारे लिए, फिर ये हो सके तो बाद में कुछ ऐसा बन जाए जिसमें आपको जरूरत भी ना पड़े इसका। So what यस is the सर। problem in making research, right? Research had bought new gaming gadget for the people, but the adverse effects are increasing at multi-fold rate. जैसे अभी बहुत सारे बच्चे गेम्स और गैजेट्स के चक्कर में किसके शिकार हो गए? स्लीपलेसनेस, सीवीएस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज, ओबेसिटी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। सो दिस इज द सिलिकॉन वैली रिसर्च ब्लंडर, थेरनोस लैब ब्लंडर। ये तो आप जानते होंगे, लाइक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। Inaccurate blood tests resulted in endangering people's life, patient harm during testing in laboratories, fraud of more than 9 billion. This is a consequence of making mistake in research. I am not saying research is bad, but ये human का tendency है कि हम गलती करते हैं, we commit mistake, and this is the problem we are creating in making mistake in research. ओके, जैसे आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग में क्या था? उसमें हम mistakenly the scientists thought that the bubonic plague is spreading because of cats and they caught all the cats and killed it, right? सही है ना? पर यस उससे सर। क्या, फिर रैट्स का संख्या बढ़ गया था, हाँ? और फिर पता था कि नहीं, रैट्स आर द कॉज ऑफ द bubonic plague, और रैट्स को खाने के लिए कैट्स थे ही नहीं। So how this is how it spread in the whole of Europe. Half knowledge is dangerous. So this is like the solution for one problem become another bigger problem. ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। गिव एन एग्जांपल टू शो हाउ मॉडर्न मैन सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम लीड टू अनदर बिगर प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली डिप्राइव्स अस ऑफ हैप्पीनेस। कोई मुझे कुछ वो देगा एग्जांपल, मतलब आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जैसे 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 टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं तो हमें हम्म, वो एक सॉल्यूशन था कि हम हमारे कंफर्ट को अचीव कर पाए, बट वो जो कंफर्ट अचीव कर रहे हैं उसके साथ हम हमारे मतलब हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ, और जो हमने देखा जाए तो एनवायरनमेंट के साथ जो गलत करा है वो कहीं ना कहीं एक नई प्रॉब्लम को इन्वेंट करा है। अब हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट कैसे बैलेंस करना है, और यहाँ अल्टीमेटली ये चीजें हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है।
कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है और उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक सॉल्यूशन ने हमें दूसरी प्रॉब्लम भी दी है और हेल्थ इश्यूज भी दिए हैं। शायद ये आंसर हो सकता यस एग्जैक्टली राइट। जैसे और भी मतलब मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक जैसे पहले बुलॉक कार्ट्स थे पुल कार्ट्स थे। तो फिर उसमें क्या धीरे धीरे स्कूटर में लाया गया कि वी विल गेट सम रिलीफ रिलैक्सेशन। तो उससे क्या है पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया कि नाउ इन बिग सिटीज इफ यू गो दिल्ली बेंगलोर एंड ऑल, आप अगर पूरे दिन अगर ट्रैवल करते हैं ना तो साइंस का मतलब एक रिसर्च आया था उसमें कहते हैं कि आप 2 क्रॉसिन टैबलेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। सो दिस इज द मतलब लाइफ आसान करने के लिए आई एक्सेप्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कार टू लाइक व्हीकल मोटर व्हीकल है नो। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आज देर इज मीन्स ह्यूमंस का जो लाइफ है वो रिड्यूस हो गया है ड्रास्टिकली। और आप जानते होंगे कि जितने बड़े शहर में हम रहेंगे हम उतना जल्दी उतना क्या बोलते हैं उतना ज्यादा हमारा लाइफ रिड्यूस हो सकता है। राइट। है। यस सर। आप देखिए ना हमारे गांव में नॉर्मल आदमी आराम से 90 समटाइम हंड्रेड्स भी जी सकता है 100 पे क्रॉस कर देता है। पर इन सिटीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव लाइक 40-45 ईयर्स भी बिना बीमारी के रहना बहुत मुश्किल है। 50 ईयर्स में आजकल लोगों का हार्ट का सर्जरी अस्थमा क्या क्या नहीं हो जा रहा है इन बिग सिटीज। So we have made some advancement, some research to make our life easy, but we have caused another big problem for us. So half knowledge is dangerous. We need full absolute knowledge. Key to happiness equals to complete knowledge. We can never obtain complete knowledge by pratyaksh praman. Hmm? जैसे आप एक मशीन को आधी नॉलेज के साथ नहीं चला सकते। कहते हो ना आधा आधा ज्ञान शैतान का मतलब आधा ज्ञान है तो वो सबसे खतरनाक है। उसके अच्छा आपको ज्ञान हो ही ना। ठीक है कि हम वीडियो देखेंगे। ओके तो यहाँ से हम इस वीडियो से हम क्या सीख रहे हैं क्या जानने को मिला हमको बता सकते हैं। सर हम ये मान सकते हैं कि जो उसको मशीन ये पता था कि मशीन उसकी रनिंग में हेल्प करेगी, पर कैसे करेगी ये नहीं पता था। तो अगर वो पहले नॉर्मली वॉक कर रहा था, अगर वो उसे कंटिन्यू रखता तो उसे इतनी तकलीफ नहीं होती, बट आधी नॉलेज की वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो वो क्या किया वो छोटे छोटे चीज से फिगर आउट करने का कोशिश किया कि अच्छा ये ऐसे है ये इस डंडे को उखाड़ा तो उस डंडे को भी उखाड़ दिया। तो वो क्या अपना लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वो सिंपली उसका मैनुअल पढ़ सकता था या किसी ऑथोराइज पर्सन से जान सकता था जिम ट्रेनर जिम इंस्ट्रक्टर जो भी तो उससे जान सकता था। हाँ पर ही मेड हिज लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड फिगरिंग आउट थिंग्स। वो को फिगर आउट कर रहा था ना। ओके। वेयर इज द मैनुअल
that can explain operations of this cosmic machine. तो वैसे ही जैसे वो उस रन ट्रेडमिल का पता कर रहा था, वैसे ही दुनिया भी एक मशीन है। तो इस दुनिया का मैनुअल कहाँ है जहाँ से हमें हैप्पीनेस का चाबी मिलेगा? Okay, let's go. Now we come to the most important thing, Sabd Brahma, hearing from bona fide authority. Okay. So, Sabd Praman, we don't see it with eye, but you hear it from the bona fide authority. जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री लैब में गए, ओके, तो केमिस्ट्री लैब में बहुत सारा एसिड्स ऐसा भी रहता है कलरफुल, जैसे वो लेमन, जैसे आप लंच से आए, ओके, तो आप केमिस्ट्री लैब में गए लंच पीरियड के बाद, तो आप देखें कि एक एक बॉटल में एक कुछ केमिकल रखा है जो लेमन की तरह दिख रहा है, राइट? तो आप उसको पीने जा रहे हैं, तब तक लैब असिस्टेंट से पूछे सर आई एम ड्रिंकिंग इट, ओके, तो लैब असिस्टेंट बोलता है कि नहीं आप इसको नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आप इसको पिए तो आपके जीभ में छेद हो जाएगा, यू कैन डाई ऑल्सो। सो हियर योर लाइफ गेट सेव्ड। आपको लेमन जूस पीना था, आपको लगा वो लेमन जूस है, आप पीने गए उसको, आप परसीव किए कि यस दिस इज लेमन जूस, यू वांट टू ड्रिंक इट, इट इज स्मेलिंग आल्सो लाइक लेमन। आप अपने नाक से भी भ्रमित हो गए कि ये लेमन जूस है, और वो आपका जो आप लैब इंस्ट्रक्टर से बोले, लैब इंस्ट्रक्टर मना कर दिया कि आपको नहीं पीना है। सी, देखिए हम अपने सेंसेस को ट्रस्ट नहीं किए, बट लैब अथॉरिटी से सुनने से, मतलब उनसे हम सुने, वो हमको जो इंस्ट्रक्ट किया, अगर हम वो माने तो हम बच गए, वी आर सेफ। फिर आपको मालूम चला कि वो तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर वो मैं पीता तो मैं मर जाता। So this is the what is Sabd Praman, hearing from bona fide authority. The lab in charge is the bona fide authority. भगवत गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम इमम राजर्षो विदु। चलिए, सब प्रमाण। अब एक बच्चे को कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पिता कौन है? कोई बता सकते हैं? सर उसके पेरेंट्स ही उसे बताएंगे, मतलब वो या तो वो देखता हुआ बड़ा भी होगा और उसे बताया जाएगा। ओके, राइट, ठीक। एक रिगरस प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस है, डीएनए सैंपलिंग, ये वो है ना। तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि यही तुम्हारे पिता हैं, इनसे तुम्हारा डीएनए सैंपल मैच हुआ है। और उसमें भी पूरे दुनिया का डीएनए सैंपलिंग करने में कितना टाइम लग जाएगा? किस कितना टाइम लग जाएगा, आपको आइडिया है कुछ? सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, ब्रेक हो गई थी वॉइस। ओके, ये बच्चे क्या कर सकता है, एक तो आप बताएं, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक मेडिकल प्रोसेस से, मेडिकल प्रोसीड्योर है डीएनए सैंपलिंग का, इफ यू नो, आपको पता ही होगा, मतलब उस उसके थ्रू जा सकता है पता करने की मेरा पिताजी कौन है। तो पूरे दुनिया का डीएनए सैंपलिंग होगा, राइट? उसमें कितना टाइम लगेगा पूरे दुनिया के डीएनए सैंपलिंग करने में? काफी टाइम सर, मतलब एक डिकेड। हाँ, आराम से 50-60 साल तो लग ही जाएगा। यस और सर। उसमें भी उसको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन है मेरे पिता, क्योंकि मल्टीपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीपल पीपल कैन हैव, मींस डीएनए सेम हो सकता है, मैच कर सकता है और भी लोगों से, क्या मतलब जैसे मान लीजिए 8-9 लोगों का मैच कर गया, तो इसको बोल दिया कि चलो इसी 8-9 में तुम्हारे पिता है। सो इज देयर एनी अदर मेथड? कुछ अदर मेथड है? यस, जैसा कि आप बताएं, जस्ट आस्क योर मदर एंड नो हु इज योर फादर, इज हु योर फादर इज, राइट? माँ से पूछ लेगा, दैट इज द बेस्ट, दिस इज शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, राइट? तो इसमें क्या बताया गया है, जो वेदास है वो हमारी माँ है, और भगवान क्या है, सुप्रीम फादर। वेदास कैन गिव अस जीके, गॉड नॉलेज, नॉट जस्ट जनरल, जनरल नॉलेज तो देती है वेदास। हम वेदास में देखें जैसे आगे के स्लाइड्स में कि कैसे काउ डंग, वैदिक मैथ्स, प्लांट इज लिविंग, ये सब हर चीज वैदिक मैथ्स,
क्या बोलते हैं उसको, आयोटा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरीथिंग इज देयर इन द वेदास। तो जनरल नॉलेज तो दे ही रही है, साथ साथ गॉड नॉलेज भी दे रही है। Now we The see. Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. So यहाँ पे we are getting to see the power of Vedas and the Vedic science. द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जैसे हम कैसे लर्न करते हैं, अभी कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ पे प्रोफेसर से सीखते हैं, है ना। फिर वहाँ पे बुक्स रहती है, ऑथोराइज बुक्स रहती है कुछ, उससे हम सीखते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो वैदिक, मतलब जो वैदिक परंपरा में क्या है, ऑथोराइज कॉलेजेस क्या है, परंपरा एंड संप्रदाय। देयर आर वेरियस परंपराज एंड देयर आर वेरियस संप्रदाय। देयर आर सॉरी, देयर आर प्रोफेसर्स। हाँ, वन हु हैज हर्ड फ्रॉम, प्रोफेसर कौन है, जो अपने टीचर से सुनते हैं। हाँ, जो अपने गुरु से सुनते हैं, दे आर द प्रोफेसर। टीचर्स आर समवन हु हैज लर्नड एज अ टीचर वेयर वंस अ स्टूडेंट। हाँ, और फिर वो अपने टीचर से पढ़े, वो अपने टीचर से पढ़े, ऐसे ऐसे करते करते वो प्रोफेसर या टीचर बने। पर वैसे ही ठीक वैदिक परंपरा में गुरुज होते हैं, जो अपने गुरु से एज इट इज सुनते हैं और एज इट इज उसको पास करते हैं। और ऑथराइज बुक्स क्या है, वैदिक टेक्स्ट लाइक भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। ओके, लेट्स लुक दिस। ओके, अनडिफिटेबल वैदिक प्रेडिक्शन। वेदास में श्रीमद् भागवतम में आप जाइए, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 24 जाके देखिए। श्रीमद् भागवतम इज द ओल्डेस्ट लिविंग स्क्रिप्चर्स इन दिस वर्ल्ड। बहुत पुराना है भागवत पुराण। तो उसमें फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 24 में गौतम बुद्ध का प्रेडिक्शन है, एंड देन गौतम बुद्ध केम। ओके, देन इन 12th canto first chapter text number 11 there is prediction of Chanakya Pandit. Okay, then if you study Mahabharat 127 127 chapter 92 verse 75 lines, then you will know about Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रिडिक्शन है कि लाइक चैतन्य महाप्रभु विल कम। And then Emperor Ashoka in 12th canto, first chapter, text number 12, there is mention of Emperor Ashoka. So these are the power. The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music,
natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably, the So these are the power of Vedas. Okay. Now we'll see how educated Indians were diverted from putting faith in the Vedas. Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Muller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. Okay. So let us now go forward. अगर आप देखेंगे जैसे लॉर्ड मैकॉली का पढ़ेंगे, so you will see how systematically इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो वैदिक विजडम है, वैदिक नॉलेज है, उसको डिस्ट्रॉय करने का हर एक कोशिश किया गया, एंड दे वेर सक्सेसफुल थे कि नॉट सक्सेसफुल? कैन समवन से राइट इन द चैट? Sorry, sir. What is the question? ऐसे इस वीडियो में हम देखिए ना, लॉर्ड मैकॉली ये कैसे इंडिया का जो वैदिक कल्चर है, वैदिक नॉलेज है, इसको ये लोग डिस्ट्रॉय करने का हर एक पैतरा आजमाए, और क्या ये सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे? नो सर, कंप्लीटली तो नहीं रहे। हम्म, मतलब हाँ, कुछ but- पार्ट में कुछ हाँ उसमें वो कर पाए, बट नॉट कंप्लीटली, बिकॉज आज भी वेदास को हम सुप्रीम मतलब एक हायर नॉलेज की तरह ही पढ़ते हैं कि अगर Yes. मॉडर्न साइंस में कहीं रुकता है तो वी प्रेफर वेदास। Yes, they like, yes, you are right. Then Dargi also said very correctly. You also said they were up to a very large extent, they were very successful, but not completely. Why? अगर पूरे होते तो आज we would not have gathered here to know about the glories of our Vedas. Okay, okay, and as educated, young, intelligent people, it is our responsibility टू मेक आवर कंट्री, मतलब हमारे लोगों में, हमारे देश में, हमारे लोगों में वापस से हमारा जो वेदास है, हमारे जो वैदिक लिटरेचर है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, हमको सब लोगों को वापस उनमें विश्वास करवाना है. दिस इज लाइक अ ड्यूटी, नॉट अ ड्यूटी, मीन्स नॉट अ ड्यूटी, ड्यूटी तो कर्तव्य हो गया, मीन्स इट इज, क्या बोले, मतलब जैसे आप जन्म लेते हैं तो आपको सांस लेना, इट इज योर नेसेसिटी, तो ये भी आपका नेसेसिटी ही मान लीजिए. Right? Am I wrong or right? राइट सर, Hmm. बेसिक फंडामेंटल्स बोल सकते हैं सर लाइफ का। हाँ, हमारा बेसिक फंड एज एन इंडियन, it is our basic fundamental. We actually we can be of any religion or we can be of any race, that does not matter. But as an Indian, our संस्कृति matters, right? हमारा क्या संस्कृति, हमारा क्या कल्चर है, that matters the most. Okay. Wisdom of Bhagavad Gita, relevance of today's Bhagavad Gita. So this is the US Congresswoman Tulsi. Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will So not. here she says about the glories of Bhagavad Gita. We know, आप लोग जानते हैं. If we accept axioms of science, then why can't we accept Vedic axioms? हम साइंस के हर चीज को मानते हैं, तो हम फिर वैदिक एक्सियम्स को क्यों नहीं मान सकते? वेदा में भी इमेजिनरी नंबर बताता है आयोटा. इट इज डिस्क्राइब वेरी वेल इन द वैदिक मैथ्स. द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is also defined there. The laws of
dynamic is also defined, then why can't we accept it? So हमारे जैसे if you want to become doctor, you go to medical college. If you want to become engineer, you go to engineering college. So what is the institute for Vedic knowledge? डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं तो यू गो टू मेडिकल कॉलेज, देयर द टीचर एंड प्रोफेसर टीचर्स यू, डॉक्टर्स टीचर्स यू। तो वैदिक नॉलेज का बेसिकली चार संप्रदाय है, इन विच द वैदिक विजडम हैज बीन केयरफुली हैंडेड ओवर थ्रू अ चेन ऑफ आचार्य एंड स्पिरिचुअल लीडर। तो भगवान के थ्रू ये चार संप्रदाय में वैदिक नॉलेज आई है। ठीक है, एक अच्छा, क्या किसी को मालूम है ये वैदिक चार संप्रदाय क्या क्या है जिससे हमारी वैदिक नॉलेज आई है, मतलब पास ऑन हुई है? फोर संप्रदाय, एनीवन नोज? गुरुकुल है क्या उसमें से? ओके, नहीं सर, गुरुकुल तो नहीं है संप्रदाय। और कोई? ओके, ठीक। पहले आते हैं श्री संप्रदाय। अच्छा, मतलब भगवान नॉलेज, मतलब वैदिक नॉलेज कहाँ से अच्छा, वैदिक नॉलेज का सोर्स क्या है? भगवान, यस राइट? सर। वैदिक नॉलेज का सोर्स क्या है? भगवान। और ये सोर्स हम तक कैसे आई? जैसे आपके टीचर्स आपको कुछ पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? वो अपने टीचर से सुने, वो अपने टीचर से सुने, वो अपने टीचर टीचर टीचर, फिर ऑथर, फिर कोई साइंस होगा जो मतलब रिसर्च हुआ होगा, उसको प्रूव किया गया होगा, देयर विल बी अ कमिटी जो इसका एक्सेप्ट की होगी, राइट? यही है ना आज का एजुकेशन सिस्टम? यस सर। फिर ऐसे करके, तो वैसे ही वैदिक नॉलेज कहाँ से आती है? भगवान से। फिर भगवान से ये चार इंस्टीट्यूशंस में बट गई है। ओके, लाइक वी स्टडी एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम बढ़ जाते हैं ना, ओके वी गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके वी गो टू मेडिकल कॉलेज, ओके वी गो टू कॉमर्स कॉलेज एंड ऑल। So this is the four institutions of Vedic knowledge. How the Vedic knowledge gets right. The knowledge is exactly the same. There is no difference. So here are the four. Sri Sampradaya coming from Lakshmi Devi. Brahma Sampradaya coming from Brahma Ji. Rudra Sampradaya coming from Lord Shiva. And Kumara Sampradaya coming from Lord Chatus Kumar. ओके, तो श्री संप्रदाय से क्या आता है? श्री संप्रदाय के प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल टीचर कौन है? रामानुजाचार्य। यू हैव हर्ड द नेम, राम नाम सुने आप लोग रामानुजाचार्य का? यस सर। ओके, देन कम्स माधवाचार्य इन ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य। उसके बाद विष्णु विष्णु स्वामी इन रुद्र संप्रदाय एंड निम्बरका स्वामी इन कुमार संप्रदाय। ओके, तो नाउ वी सी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे में श्रीमद् भागवतम 1.1.1 द वैदिक नॉलेज आर रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। ब्रह्मा इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स, और उनके हृदय में भगवान वैदिक नॉलेज को रिवील करते हैं। और उसके बाद द वैदिक विजडम कम डाउन इन डिसाइप्लिक सक्सेशन थ्रू चेन ऑफ गुरुज फ्रॉम बिगिनिंग क्रिएशन। मतलब ये भागवतम में बताया जा रहा है कि भगवान से ब्रह्मा जी में आया, फिर ये देखिए पिक्चर में ब्रह्मा जी से नारद, नारद से फिर अलग अलग करते करते, then this parampara is like we are talking basically here about the second one, the Brahma Sampradaya. Brahma and Madhavacharya is the means the Brahmacharya, what to say, is the spiritual teacher in the Brahma eminent. So here this wisdom is getting transferred. Then we'll see it later. 5,000 years ago, Vyasdeva, literally incarnation of God, recorded all the Vedas in writing for the benefit of people in Kali Yuga. अच्छा, 5,000 साल पहले व्यासदेव जो कि भगवान के अवतार हैं, वो सारे वेद को लिखित रूप में रख के गए। क्यों? कलयुग के लोगों के लिए। क्यों क्यों कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कि लगभग सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, प्रभु जो है, गॉड है, वो सुप्रीम पावर है, तो शायद उन्हें ये भी पता होगा कि आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लाइक तो क्या एवरीथिंग, अगर हम पहले जरूरत नहीं थी इन चीजों की? सर पहले भी थी, मतलब शायद मानव कल्याण के लिए ये सब लिखा गया था,
या हाँ, पहले भी थी, पर एक्चुअली देखा जाए तो पहले जो युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो उसमें लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। कलयुग में मतलब सब पीपल आर नॉट सो इंटेलिजेंट, सो उनके थोड़ा बुद्धि के लिए मीन्स भगवान खुद व्यासदेव का इंcarnation लेके ही रोट डाउन एवरीथिंग। दैट्स व्हाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर हैविंग भगवत गीता, वी आर हैविंग। आज तो ऐसा नहीं है कि हम सुन लिए एक बार बस हमको याद हो जाए। दैट्स व्हाई गॉड वेरी मर्सीफुली इंcarnated, भगवान व्यासदेव के रूप में आते हैं और सारे वैदिक लिटरेचर्स को लिख के जाते हैं। वैदिक लिटरेचर नॉलेज को दो पार्ट में किया जाता है, श्रुति स्मृति, फिर उसके बाद पुराण इतिहास, शिव तंत्र जो शिवा और पार्वती के बीच में, फिर अलग अलग दर्शन है, वेद है, वेदांग है, मंत्रा, ओके, बहुत सारी चीज है। पर नाउ we will see, like what we are seeing here mainly Brahma. We are taking the case of Brahma Sampradaya, right? So now we see that he is AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He is a devotee, pure devotee of Lord Krishna. So he came into the Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya, and he also gave a very pure and simple teaching of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. एक्चुअली भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम जो है ये सारे वैदिक नॉलेज का सार है। मीन्स अगर आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ लेते हैं, इन दैट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। So he gave Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita in very easy to understand way. So now coming back to the blind men and one wise man story. So यहाँ पे जो एक पंडित है, पंडित जी हैं, वो कहते हैं, पूरा पंडित से you all are catching only one side of truth, and he start describing elephants and then they understand. हाँ, इनको क्लियर नहीं था। फिर ये जो एक आदमी आया, ये बता रहे हैं कि तुम लोग बस थोड़ा थोड़ा पार्ट को पकड़े हो, तुम लोग पूरे हाथी को जानो, ये ऐसा है। फिर ये जो छह लोग हाथी के बारे में जानते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा, हाँ हाँ, मैं इसका पैर पकड़ा हूँ, अच्छा ये हाथी का पैर है इसलिए इतना बड़ा है। सिमिलरली अगर हम लोग भी ऐसे सुनेंगे तो फिर हमको आंख मिल जाएगा उस चीज को देखने के लिए। दिस इज फुल ट्रूथ एंड पार्ट ऑफ ट्रूथ। ओके, सो हम क्या क्या की सीखे आज? थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज क्या है, कोई बताना चाहेगा? थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। यस सर। सर, एक तो जो हम सुनकर सेंसेस के थ्रू जो हम गेन करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, हाँ, दूसरा अनुमान जो गैस पॉप होता है वो। यस और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। यस, वेरी गुड। ओके, प्रत्यक्ष, और डिफेक्ट। फिर हम देखें कि अनुमान प्रमाण में हम क्या क्या देखें? मिस्टेक्स इन साइंस इज डिजास्टर और हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट? फिर सब प्रमाण में हम क्या क्या देखें? सब प्रणाम में हम देखें इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव नॉलेज, वैदिक ट्रूथ एंड परसेप्शन, प्रेडिक्शंस, चार संप्रदाय और ब्रांचेस ऑफ वेदांत। और सारे जितने भी वैदिक नॉलेज है उन सबका सार क्या है? श्रीमद् भागवतम जो कि भागवत पुराण है, और भगवत गीता। ओके, थैंक यू, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। ओके, बस 6 लोग ही हैं। अच्छा, सर, एक डाउट था हाँ, ओवरऑल ये सेशन से। सर, लाइक मतलब ये सेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये नॉलेज से रिलेटेड है। जब आज हमने नॉलेज की बात करी और हमने एक और चीज बोली कि अब हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम जो एक बार सुनते हैं या करते हैं वो हम गेन कर पाए। सर, लाइक मैं पर्सनली स्क्रिप्चर्स, मतलब जो हमारे वेदास हैं उन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि हाँ वो बहुत ज्यादा ट्रुथ है, जो भी है वो है। बट सर, मैं जैसे एमबीबीएस लाइफ में अब इन्वॉल्व हो जाऊंगा थोड़े से टाइम में, जैसे हमारे प्रोफेशनल क्लासेस लगेंगे, तो क्या उसके साथ ये सब कंटिन्यू होगा कैसे? और अगर होगा तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा? लाइक मैं चाहता हूँ इसमें इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना, बट ये कैसे पॉसिबल होगा? लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, बट फिर वो पॉसिबल कैसे होगा? बड़ा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि क्या मैं मेरी संस्कृति के साथ अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कैसे करूं। लेकिन ओके,
एक्चुअली इफ यू मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे, इफ यू इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स, हाँ, सो आप शायद, आई डोंट नो, आप ABCD आप पढ़े क्या, मतलब पिछले सेशन में आया था क्या ABCD, एसोसिएशन, BCD, ABCD, एसोसिएशन, बुक, okay. So A is very important, association with the kind of people you associate with. टाइम रहता है, लाइक आई, नो वन विल डिनाई, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम कुछ दिन में 5 मिनट भी कुछ ना कर पाए, ओके, वी हैव सम टाइम. द मेन थिंग मैटर्स इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी एसोसिएट विद. ओके, आई थिंक ही लेफ्ट. ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन. Okay, thank you, Kisle sir, and all the participants, especially Gargi, Jigisa, and Pranay over there at the end, till the end. इसमें जस्ट एक करेक्शन मैं देना चाह रहा था कि एग्जाम्स वाला जो पॉइंट था उसको लेके, कि एग्जाम्स मतलब होता है साइंस में जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो कि अजम्पशंस है, बेसिकली वो ट्रूथ नहीं है. हाँ तो सॉरी सर, मैं एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज की वजह से यस, आउट हो गया था। आप आपके पॉइंट पे आते हैं पढ़ने. जस्ट मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था इसमें, जो यस किस लेसन ने शेयर किया था. तो ये एग्जाम्स वाला पॉइंट था कि ये जो हम मैथमेटिक्स में या साइंस में जो हम स्टडी करते हैं एग्जाम्स, जो कि वास्तव में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई आप नहीं कर सकते उनको बेसिकली. जैसे √-1 ये क्या है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, इमेजिनरी है ये, मतलब काल्पनिक है. तो इसको आयोटा नाम दे दिया. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैथमेटिक्स वाले जो रहते हैं स्पेशली वो जानते हैं ये सब चीजें, कि आयोटा की हेल्प लेके पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा है ना. उसी तरीके से हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है ये, इसमें भी अजम्पशन है, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, है ना. अनसर्टेनिटी, नाम ही क्या है, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं है. इसी तरह लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जस्ट मान लिया गया है. क्योंकि ये जो एग्जाम्स रहते हैं, इनको मान लेने से क्या होती है, हमारे प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से. उसी तरीके से वेदांत में भी कुछ चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन क्या है, सटल साइंस है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप यदि उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको बाकी चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो हम देखिए, हम साइंस में तो एग्जाम्स को मान लेते हैं कि वी आर सो मच साइंटिफिक, जबकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं कर सकते, वो खाली मान लिया गया है काल, है ना, इस तरीके से. तो वेदांत में भी कुछ चीजों को हम मतलब प्राइमरी थोड़ा फंडामेंटल, है ना, फेथ रख के उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे तो जैसे हम एग्जाम्स को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू आप बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं. मैथमेटिक्स में आप 11th क्लास में जो जेई वाले रहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले जो रहते हैं, वो जानते हैं. तो उसी तरीके से ये जैसे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, तो आप भी साइंस वाले सभी जानते हैं. तो इस फॉर्मूले के से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. उसी तरीके से वैदिक जो एग्जाम्स है वो कहती है वो एक्सेप्ट कर ले तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं. लेकिन हम बोल देते हैं अरे ये तो मिथ है ना, ये तो काल्पनिक है, माइथोलॉजी बोलते हैं ना लोग शास्त्रों को. जबकि शास्त्र क्या है, बोनाफाइड है ना, दे आर ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक. आप कोई भी एक भी स्टेटमेंट को आप गलत प्रूव नहीं कर सकते. हो सकता है आप उसको सही प्रूव भी नहीं कर पाए क्योंकि सटल साइंस है, लेकिन उसको आप गलत भी तो प्रूव नहीं कर पा रहे ना. और जितने भी इसमें प्रेडिक्शन दिया है, कितना कुछ पिछले सर ने डिस्कस किया भी है ना, काफी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कि कोई कुछ भी मतलब गलत दिया है. जैसे प्रेडिक्शन थी, पहले से प्रेडिक्शन की हुई है शास्त्रों में, और बाद में ऐसा हुआ, चाणक्य पंडित आए, चंद्रगुप्त आए, महात्मा बुद्ध आए, तो पहले से ही लिखा था शास्त्रों में, बाद में वो जन्म लिए है. मतलब कितना बोनाफाइड है. एम्ब्रो साइंस आपका ये भागवतम में, एक बच्चा कैसे जन्म लेता है, सब कुछ है ना. तो इस तरीके से अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, प्रणय. तो इसमें आप हमेशा आप हमारे सेशन अभी इतने लंबे नहीं चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. ये जस्ट स्टार्टिंग जो डिवाइस कोर्स होता है, इसमें 5 से 6 सेशंस रहते हैं, और इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है, 1 से 1.5 घंटे के ये लेक्चर्स है. जनरली इतने लंबे लेक्चर भी नहीं रहते हैं, 40 to 50 मिनट्स ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों का काफी इंटरेस्ट है इस कारण थोड़ा सा लंबा करके हम जल्दी फिनिश कर देना चाह रहे हैं.
क्योंकि अपने मेडिकल में क्या रहता है कि इतना टाइम नहीं रहता, एक बार जैसे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी आप काफी बिजी हो जाएंगे फिर। तो इसमें आपको आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को देख सकते हैं, देखिए आपके केशव सर कैसे कर रहे हैं। आपको उतना समय नहीं देना है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में रेगुलर कुछ समय देंगे तो उस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उसमें। और क्या क्या प्रैक्टिकली कैसे कैसे कर सकते हैं वो आप, जो आपके सीनियर्स जो कनेक्टेड है ऑलरेडी, है ना, उनसे आप कनेक्टेड रहिए तो अपने आप सीख जाएंगे कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। और है ना, ये चीजें भी मतलब नॉलेज विजडम ये भी हम गेन करते जाएं और प्रैक्टिकली हम हमारे लाइफ में भी उसको अप्लाई करते जाएं, है ना। जैसे किसले सर हैं, वो भी अभी वर्किंग है, he is not a student but he is still practicing, है ना, टीचिंग आल्सो। तो इस तरीके से यू कैन ऑफ कोर्स, है ना, इसको इट्स नॉट थ्योरी, एक्चुअली हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। और है ना, जैसे कर्म योग आपने सुना होगा, इसका मीनिंग यही है, ऑफरिंग द रिजल्ट्स, है ना। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है तो चलो आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोड़ना बिल्कुल नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स जोड़ना, है ना। बहुत सारे लोग छोड़ समझते हैं ना स्पिरिचुअलिटी मतलब कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इस तरीके से। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। आप अपना स्टडी करते रहिए अपना आगे, है ना, एमबीबीएस है, उसके बाद आपका जो भी फील्ड रहेगा, एमडी एमएस जो भी करेंगे, है ना, तो यू कंटिन्यू इन दैट वे। और वहाँ पे भी आप है ना, कर्म योग की तरह है। देखिए कर्म सब कर रहे हैं लेकिन उसको ऑफरिंग द रिजल्ट्स टू द सुप्रीम, इस तरीके से करते हैं तो आप लॉज ऑफ कर्मा में बाइंड नहीं होते हैं। ये लॉज ऑफ कर्मा ये हम आगे भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो और कैसे कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, ये सब पॉइंट्स हम धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करेंगे। इट्स ओके पढ़ना। यस सर, मतलब एक आंसर तो मुझे मिल गया। लाइक मेरा वो था कि क्या मतलब ये सेशंस मुझे लगा सिर्फ मतलब 7 8 दिन के लिए ये, उसके बाद इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं। दैट्स एक क्वेश्चन आया था कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूंगा। ओह तो वो ओके तो ओके। क्लियर हो गया कि ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ हाँ। और सर टाइम इशू तो ठीक है कि मतलब लंबे लेसन मतलब जो चल रहा है सेशन अच्छा लगता है, तो वो एक ट्रबल नहीं है अभी फील हो रहा है। बट सर एक करेक्ट। क्वेश्चन और था कि जैसे अभी हमने इसी सेशन में बोला कि हम इसको ग्रैप नहीं कर पाएंगे एक इंस्टेंट पर। लाइक अब हम इतने, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि अब हम उन चीजों को इजीली ग्रैप कर पाए जो हम अभी सीख रहे हैं। तो फिर हम्म। वो कैसे होगा सर? मतलब लाइक ये लेसन जो आज मिले हैं, मतलब मेरे मन में पर्सनली डाउट आता है कि जो हमने आज सीखा, अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो हम लेक्चर्स के नोट्स बना लेते हैं, तो हम उन्हें बार करेक्ट बार रिवाइज करते हैं। करेक्ट। बट सर ये लेसन तो लाइक यही खत्म हो जाएगा। पर इसमें कुछ चीजें जो मतलब मुझे डीपली कनेक्ट कर पाया वो तो मैं रख पाऊंगा याद, बट एक हम्म टाइम के बाद चीजें सुपरफिशियली खत्म होते जाती हैं। हम्म। तो करेक्ट। उसके लिए कैसे क्या मतलब रहता है? क्योंकि मुझे हाँ। डीपली थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में, इसलिए क्वेश्चन आता है बार बार। मतलब बहुत हाँ। पहले से आता है कि जब भी मैं स्पिरिचुअल या फिर रिलीजन से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ वेदास से, तो हम्म जब मेरे पास टाइम रहता है, लाइक एक वीक फ्री हूँ मैंने उन्हें पढ़ा, अच्छा लगा। बट 1 मंथ बाद देखता हूँ तो वापस सब वैनिश हो जाता है। तो correct। उसके लिए बोला जाता है कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, मतलब आप इसको भूले नहीं, है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपने जो गेन किया है उसको आप दूसरों को भी बताइए। तो आप किसी को टीच करते हैं तो होता क्या है कि वो चीज़ आपको आप अच्छे से उसको और अच्छे से स्टडी करते हैं, है कि नहीं। और फिर किसी को बताते हैं तो आपका जो रियलाइजेशन है, खाली थ्योरी नहीं, देखो एक थ्योरी होता है कि हमको खाली ये पता है, एक होता है उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, है ना। वो पावरफुल होता है रियलाइजेशन, है ना। जैसे हम पढ़ लिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, लेकिन हैव यू रियलाइज्ड, क्या आपको रियलाइजेशन है? नो। लेकिन समय के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे वो रियलाइजेशन आता है। और जब आप सोल के प्लेटफॉर्म पे आता है तो आप ड्युअलिटी से अफेक्ट ही नहीं होते हैं, है ना। आपको मान हो या ज्यादा अपमान भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप चलो सुसाइड ही कर लें, इतना मेरा इतना अपमान हो गया मेरा कि चलो अब सुसाइड ही कर लेता हूँ, है ना। सुख या दुख, ज्यादा थोड़ा ज्यादा दुख में चले जाते हैं तो पीपल कांट हैंडल देयर सिचुएशंस बेसिकली। तो स्पिरिचुअलिटी हमको क्या करते हैं बेसिकली, जो ड्युअलिटीज है मेटेरियल वर्ल्ड में, ये जो ड्युअलिटीज होती है उनसे ऊपर उठा देती है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो लाइफ जीना बहुत आसान हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि वेदा जी पढ़ना भी पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, सर कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे लाइफ को। अरे नहीं, लाइफ को बैलेंस करना और आसान हो जाएगा। लाइफ जो हमारी रेगुलेटेड हो जाती है, डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं, युक्ताहार विहार से, जो भगवत गीता हम देखेंगे, है ना, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो, है ना,
कोई मिजरी नहीं, दुख हाँ, है ना, दुख सारे नष्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो एक्चुअली क्या रहता है कि हमारे कंसेप्शन, है ना, पूरा बोनाफाइड ऑथेंटिक सोर्स से हम स्टडी नहीं करते, इस कारण प्रॉब्लम जाती है। am I able to clarify your doubt कुछ हद यस तक? सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच जिगिसा, बजोरिया, गार्गी, प्रणय, and also Vivo 18 1811। थैंक यू सर, आप बहुत प्यारा सेशन था सर, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली बहुत पावरफुल सेशंस है, लेकिन क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम हाँ यही सर, फर्स्ट डे तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा था कि क्या हो रहा है, बट अब जैसे जैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं काफी अच्छा लगते जा रहा है कि हाँ, एक सही है। डायरेक्शन कुछ तो मिला कि हाँ एमबीबीएस के साथ कुछ और भी हो सकता है। हाँ, जैसे आपके साथ बताए थे ना प्रोफेसर जो थे कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, वो एक्चुअली खुद ही इस फील्ड में है, इस कारण वो खुद से आके बोले कि ऐसे आप सेशन कीजिए, आप लोग ऐसे कीजिए। ओके सो देखते हैं कल करेंगे या नहीं करेंगे, पोल के हिसाब से देखेंगे, ज्वाइन कर पाएंगे तो स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर दिवाली के बाद हम एक दो और सेशन है जो हम बाद में करके कंप्लीट करेंगे इसको। ओके सो थैंक यू वेरी मच, ओके, विल मीट थैंक यू यू सर। नेक्स्ट टाइम।